पोस्चर जो होता है वो कैसे होता है। तो पहले यू टू सिट, यू टू एक्ट लाइक दैट यू एन ऑफिसर, यू थिंक लाइक दैट यू एन ऑफिसर। मेंटेलिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा जो आप एक ऑफिसर है। तो मैंने जो किया वो, आफ्टर द 19 इंटरव्यू आई स्टार्टेड टू थिंक माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर दैट आई एम एन ऑफिसर। तो मुझे ऐसे बात करना चाहिए, मुझे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ढंग से मुझे बातचीत को इनिशिएट करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं त्रिपुरा पुलिस सर्विस 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 2 हासिल करने वाले दीपांदु बिस्वास जी। वेलकम दीपांदु टू स्टडी आईक्यू। Thank you very much for providing me the opportunity in such a great platform of yours to represent myself. Thank you. We are very pleased दीपांदु to have you today with us। और हमें बहुत खुशी है कि आपकी जो जर्नी रही है, आई एम श्योर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो भी व्यूअर्स कुछ ही टाइम में विल कम टू नो। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ दर्शकों को अपने बारे में बताएं। Okay, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ दीप्तानु विश्वास। तो मैं त्रिपुरा से हूँ। I did my graduation from Tripura University in the subject of human physiology, where I stood first plus first. I got a gold medal for that. And next I went for doing my master's in molecular biology and bioinformatics from Tripura University. And there again, I stood first. I clarified SLATE in 2016. And then I started my, I opted for the civil services and started my preparation from 2016 onwards. But I gave the exam. I could not go to the viva or the interview in the first attempt in 2016. And second, I gave in 2019, where I opted for the viva but could not get cleared it because of 12 marks, 12 or 11 marks like that. So then I clarified in 2021 in second rank in TPS in the police services. I did my B.Ed also from IISc Kunjavan. I was doing my M.Ed from IISc Kunjavan and also clarified CTET paper 1 and paper 2 in 2019. दीपानु, आप यू आर क्वाइट क्वालिफाइड, आपने बहुत सारे डिग्रीज हासिल की हैं, यू हैव क्लियर लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान कैसे? हाँ, एक्चुअली मेरे डैड जो थे who passed in 2008, where I lost my mother also. My dad was in a civil services. तो तब से मैं देख रहा था जे the aura he used to have, right? उनके साथ जो दोस्त लोग थे, जो उनके साथ वो colleagues थे, तो they were having a distinct identity in the mob. तो उस समय से मुझे थोड़ा इच्छा था कि I want to join the civil services. But I also wanted to just complete my academic qualifications also. So I did all these things and made myself prepared to appear for the civil services to be suitable for the job. इसलिए दीपानु, आई एम श्योर आपके माता पिता बहुत ही आप पर गौरवान्वित होंगे क्योंकि एक बेहतरीन रैंक के साथ आपने हासिल किया है इस एग्जामिनेशन को और आपने अपने पिता को ही मोटिवेशन माना। तो आई एम श्योर दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी, योर पेरेंट्स। It was my honor to have my dad actually in such a position. दीपानु, अब मैं आगे चलती हूँ और एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। इस एग्जामिनेशन को आपने तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अब क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट को एग्जामिनेशन के साइकिल में आने से पहले? दे शुड नो एवरीथिंग एंड देन कम टू द साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन। पहले तो ये चूज करना पड़ेगा जे whether you want to go for TCS or TPS, means in the civil services or in the police services. So see, both the jobs has got their perks, both of them has got their own merits and demerits also. So you should be first clear that मुझे कौन सा नौकरी मेरे पर्सनैलिटी के साथ वो सूट करता है। तो I thought that the police services were the best option for me because my teachers, who are actually my well-wishers for me, and my wife, right? So they have all motivated me to, stick on to the police services all the time. They say that तुम्हारा जो appearance है, तुम्हारा जो बात करने का स्टाइल है या फिर जो कुछ भी है, right? It is just suitable for the police services. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद मैं देखा so there are very much opportunities where we can showcase our talents, right? So मैंने वो पुलिस सर्विस चूज किया।
फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है that the student should be aware of his or her strengths, weaknesses, skills, right? Aptitude, then problem solving ability, and then choose a service. First thing first. Second जो आता है वो important है, वो है preparation. See, for sustainability of myself, okay, I have to go for tuitions. तो मैं सुबह और शाम को ट्यूशन करता था फॉर माय लाइवलीहुड, और उसके बीच मेरा कॉलेज भी था. उसके बाद रात को आई टू सिट फॉर 4 to 5 minutes ऑफ 4 to 5 hours ऑफ इफेक्टिव स्टडी. तो वो इफेक्टिव स्टडी होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर यू जस्ट लूज योर सेल्फ और डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द सॉर्ट्स ऑफ distraction that we have. We have the phone, we have the TVs, we have the other, works to do, right? So सब कुछ छोड़ छाड़ के वही 3 to 4 hours I used to dedicate myself. I used to concentrate on my study only. And the third more important thing is that the writing. The writing skills are very much important, where the examiners actually just look at the copy and actually go for the volume first. अगर volume अच्छा रहेगा, so they have got the impression that हाँ इस बंदे में थोड़ा सा बात है. He or she has read the thing, have gone through a syllabus, because syllabus is very vast in this case, right? So they have gone through syllabus and they have prepared themselves for the examination. तो volume अच्छा होना चाहिए, उसके बाद practice करना चाहिए that time limit में. 3 घंटे में आपको 150 मार्क्स लिखना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए अपने बहुत सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी भी है. तो फॉर 5 मार्क्स एटलीस्ट I wrote 3 pages. तो 3 पेज माने approximately 450 words like that. तो prepare करना चाहिए उस तरह से while preparing for the main examination. और fourth, always we have to stay motivated. So there are very much instances in my life where my friends were going to job, they were getting the banking job, they were getting the IPBS jobs, right? So they were going for the NASA jobs even. Okay, MNC companies में बहुत कुछ है. But I was focused, yeah. I have to get this. I have to do my, soul work fast, hard, rigorous enough to crack this examination. वही 4 चीज बहुत important है life में, because you have to stay motivated. You will have to motivate yourself. There's nobody to take care of your motivation level, and there's no one to solve your problems. You are the only problem solver for yourself. That's it. दीपानु, आपने 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बताई कि कितना इंपॉर्टेंट है इन चारों पॉइंट को फॉलो अप करना एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में आने से पहले, और अगर आप आ जाते हैं तो जो लेटर 2 पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से इम्पोर्टेंटली सस्टेन करना है इस एग्जामिनेशन में. दीपानु, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होनी चाहिए. किस तरीके से जब इंटीग्रेटेड स्टडीज करते हैं तो कैसे ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है, मेंस के लिए क्या फॉरवर्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने चाहिए? एक्चुअली तो इन त्रिपुरा में जो देखा है, जब कोई एड निकलता है, राइट, सो व्हेन द टीपीएससी गिव्स द एड और द नोटिफिकेशन, 3 महीने के बाद वो एग्जाम लेता है, राइट. एंड व्हेन द एड कम्स आउट, तब भी अगर कोई बंदा सोचे दैट आई हैव टू study hard and within this month I can clear off the prelims or the mains, ये थोड़ा hard हो सकता है. I have seen many aspirants. You should take at least 3 to 4 years of continuous repeating studies for that. देखिए, prelims जो होता है, तो prelims में आपको सब कुछ cover करना पड़ता है. At least 1 year study मैंने खुद किया है for covering the prelims. उसके बाद mains, notification निकलने के एटलीस्ट 6 months पहले से आपको लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली आपको वो कॉपीज, वो पेजेस भरना पड़ता है, सो दैट यू कैन बिकम व्हाट इज एडेप्टेड टू द सिनेरियो, राइट. तो प्रीलिम्स तो मेंस खत्म होने के बाद आप जाएंगे वो मेंस के लिए, एंड मेंस के लिए एटलीस्ट आई बिलीव हमको 6 महीने चाहिए होता है बिफोर द नोटिफिकेशन. आई एम टेलिंग अबाउट दैट. After notification, you will get at least 8 to 9 months for the completion of the whole procedure. तो 1 साल नोटिफिकेशन के पहले वो प्रीलिम्स का स्टडी, 6 मंथ नोटिफिकेशन के पहले वो मेंस का शुरू करना चाहिए. मैंने जो किया. और अगर हम कंटिन्यूअस साइकिल की बात करें, जैसे आपने 3 अटेम्प्ट दिया है, आपका तीसरा अटेम्प्ट था, आप तीसरे अटेम्प्ट में बीन सक्सेसफुल, तो इन तीनों अटेम्प्ट में आपने क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए, प्लस इस अटेम्प्ट में आपके हिसाब से आपके लिए क्या क्रिटिकल पॉइंट्स रहे हैं जिसमें आपको इस बार फाइनल लिस्ट में आपका नाम आया है? या
सो इन 2019 जो था, उस टाइम में मैं थोड़ा वो इंक्लाइन हो गया था टुवर्ड्स गिविंग नेट, बिकॉज आई वाज कंप्लीटिंग माय एम एड आल्सो, राइट? सो आई वांट टू क्वालिफाई नेट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन. तो उस टाइम में थोड़ा वो नेग्लिजेंस दिखाया था मैंने फॉर द मेंस, और वाइवा में मुझे मिला था 45. ओके, तो तब मुझे पता चला आई माइट बी हैविंग सम वीकनेसेस इन माय पर्सनालिटी, एंड दैट्स व्हाई द इंटरव्यू ही माइट नॉट हैव लाइक्ड मी दैट मच, राइट? ओके, तो तब से एक साल आई वाज वर्किंग ऑन माय स्किल्स, वर्किंग ऑन माय फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट? तो वर्किंग ऑन माय बिहेवियर, और जो रिफ्लेक्ट हुआ इस बार मुझे मिला 70, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स मुझे मिला आउट ऑफ 100 in the interview, in the Viva Voce, like that. And that helped me much to gain the second position in the TPS. तो पहले बार मेरा था weakness on the mains, second था weakness on the Viva, or I can say the interview, and third time तो सब कुछ मिला के मैंने वो accomplish कर लिया, right? वही चीज है. दीपानु, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा और इंटरव्यू के बारे में बताएं. इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है. आपने खुद भी बताया कि आपने बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स पे काम किया, और इस बार शायद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट ही था जो आपको सेकंड रैंक लाने में आपकी मदद की. एग्जैक्टली. तो फर्स्ट थिंग, मेरा मोटिवेशन ऑलवेज था टुवर्ड्स द पुलिस सर्विसेज. तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो पुलिस लोग, जो ऑफिसर लोग होते हैं, या फिर जो अदर रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो कैसे बातचीत करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनका जो अपना बॉडी बाकी से पोस्चर जो होता है वो कैसे होता है. तो पहले यू हैव टू सिट, यू टू एक्ट लाइक दैट यू आर एन ऑफिसर, यू थिंक लाइक दैट यू आर एन ऑफिसर. मेंटलिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा जो आप एक ऑफिसर है. तो मैंने जो किया वो, आफ्टर द 19 इंटरव्यू आई स्टार्टेड टू थिंक माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर दैट आई एम एन ऑफिसर. तो मुझे ऐसे बात करना चाहिए, मुझे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ढंग से मुझे बातचीत को इनिशिएट करना चाहिए. तो ये बैक ऑफ द माइंड था हमेशा मेरा. और उसके बाद या वोकैब्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वोकैब्स. तो वोकैब्स जो होता है, तो यू शुड बी एबल टू टॉक in such a way that the interviewer becomes fascinated towards your intelligence, towards your bank, we can say bank of the vocabulary, right? तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. उसमें मैंने वो काम किया था, राइट? तो उस रिफ्लेक्शन आ गया. दिस इट. लास्ट इंटरव्यू से इस इंटरव्यू तक का जो सफर रहा है, जो भी आपने चेंजेस अपने अंदर लाए, आपने वो तो बताया, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कैसे टैकल करना है, अगर वो आप शेयर कर सकें. एक दो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए. They are actually recruiting the persons who are actually an educated servant, right? Because we are servant for the people. तो इसके लिए तो मुझे पूछे थे वो एक क्वेश्चन दैट सपोज मैं गया था वहां पे एक्चुअली. तो वहां पे 5 जन बैठे हुए थे. तो इन द मिडल देयर वाज द चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन वाज देयर, एंड द अदर 2 मेंबर्स वर देयर, एंड दे वर आल्सो गेस्ट इंटरव्यूअर फॉर दैट. एक साइकोलॉजिस्ट भी थे वहां पे. तो जब मैं पहले तो अंदर गया, तो they have asked me to sit. I sat on the chair. In front of it there was a table where I just kept my the which I was carrying. उसके बाद मैं पहले मेरे क्वेश्चन पूछा, जे मान लो अगर यहाँ पे एक भूकंप आता है, राइट? तो आप क्या करोगे? तो मैंने बोला, I'll first of all save myself by going under the table, because in the school level we have been taught to go under the table whenever there was an earthquake, right? तो उन्होंने मुझे पूछा तो हम लोग क्या करेंगे? तो फिर मैंने बोला, yes sir, you are well educated enough, you are well informed enough, and you will also try to save yourself. तो वो आंसर तो उनको अच्छा लगा. वही. और मुझे सेकंड पूछा कि मान लो एक बच्चा आया, तो जिसका मॉम एंड डैड तो वो गुजर गए, राइट? तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है अबाउट द गाय? तो मैंने बोला, I'll have sympathy for him, I have compassionate for him, because I know the things, I have the feeling of losing both the parents. So first of all, the thing I'll do, I'll try to make him come. I'll try to talk with his guardians, and will try to just ask him to get well educated so that he can
stand on his own foot without getting support, without getting, rely too much on anyone else. वही मैंने बोला था. और कुछ जिज्ञास या और कुछ पूछे थे मुझे, like I can say about my background, about my education qualifications. वो बहुत important था. I would like to focus on that point. तो बहुत important था my education qualification. उसके बाद वही और कुछ वो एक्सटेम्पो था, कुछ क्वेश्चंस अबाउट त्रिपुरा कुछ था, like त्रिपुरा का वो जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर, शॉर्टेस्ट रिवर तो क्या है, राइट. तो वो कुछ पूछा था मुझे. दीपानु, I'll ask you, लास्ट इंटरव्यू की हम हमेशा बात करें क्योंकि उसको हम एक रेफरेंस बना के चल रहे हैं. आपने भी बताया कि इंटरव्यू हैज बीन लैंडमार्क फॉर यू टू गेट यू इनटू द सर्विसेज. तो एग्जैक्टली लास्ट इंटरव्यू से इस इंटरव्यू तक का सफर जो रहा है, आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए इंटरव्यू के दौरान? सेकेंड जो इंटरव्यू था या फिर लास्ट जो इंटरव्यू था, वहां पे मैं थोड़ा डर गया था. एक्चुअली आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ. तब मैंने वो समझा जे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो अब वो जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं उसका आंसर आप ठीक से नहीं दे पाओगे. आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना पड़ेगा. और आई वुड लाइक टू फोकस ऑन वन मोर थिंग. In the last interview, I actually had a sort of debate with one of the panelists. तो वो मेरे लिए बहुत नेगेटिव था. और एक बात है, I actually said, sir, can I guess the answer? तो ये वाला बहुत नेगेटिव था मेरे लिए. तो इसको मैंने वो काम किया और लास्ट इंटरव्यू था मैंने इस इंटरव्यू में उसको मैंने कवर अप कर लिया था. You have to always stay smiling. You have to always stay positive, and वही nodding करना चाहिए हमेशा. So, Dipanu, how study IQ has been part of your journey? See, we are in the northeastern states, right? So there we are not exposed to बहुत सारे वो कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो सेंट्रल इंडिया या फिर आपका वो नॉर्दर्न इंडिया में कंसंट्रेट होते हैं. तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो ज्यादा नहीं आते, या फिर आते हैं तो भी उनका स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा होता है दैट वी कांट अफोर्ड दैट. एटलीस्ट आई कुडंट अफोर्ड दैट. तो वी हैड द फ्री इंटरनेट तो सर्विसेज इन आवर एरिया. तो जिसको मैंने वो काम में लगाया और वो स्टडी IQ में जो आपके सर है, right, I used to refer to them. So whenever I used to have any problem for any topic, जो टॉपिक थे हमारे सिलेबस में, तो उनका एक बेस रेफरेंस के लिए मैं इनका लेक्चर तो वो दिखता था. I used to write them in a paper, in a sheet of paper, और उसके बाद उसमें कुछ अदर बुक को तो मिला के एक अच्छा सा नोट बनाता था. और वो मुझे बहुत हेल्प किया during my quick revision for my examination. Dipanu, we are very glad कि हम आपकी success story का हिस्सा बन सके, and it was so pleasure to have you, to have your experiences. Thank you so much, and the entire team wishes you good luck, all the very best. Thank you. Thank you, Divyansh. Thank you, Divyansh.